نصف شب کے بعد ایک نقاب پوش شخص ہسپتال کی 32 سالہ ڈاکٹر شازیہ خالد کے کمرے میں کھڑکی کے ذریعے گھستا ہے۔ وہ شخص نیند کی آغوش میں ڈوبی ڈاکٹر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتا ہے تو غنودگی کی حالت میں ڈاکٹر پہلے یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ شخص اس کا زور سے گلا دباتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں بلکہ اس کی زندگی کی بھیانک حقیقت ہے۔ چونکہ ڈاکٹر کمرے میں اکیلی تھی اور اندھیرا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون اس کا گلا دبا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے بیڈ کے ساتھ لگے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تاکہ وہ کسی طرح باہر سے مدد لے سکے، تو اس پر اس شخص نے ٹیلی فون اٹھا کر ڈاکٹر کے سر پہ دے مارا۔ نقاب پوش نے ٹیلی فون کی تار کو ڈاکٹر کے گلے کے گرد لپیٹ کر اس کا گلا دبایا، پھر اس نے اسی ٹیلی فون کی تار سے ڈاکٹر کے ہاتھ باندھ دیے۔ ڈاکٹر نے خوف کے مارے چلانے کی کوشش کی تو نقاب پوش نے اپنا پستول اس کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے کہا، شٹ اپ، باہر امجد کھڑا ہے، اس کے پاس مٹی کا تیل ہے، اگر دوبارہ آواز نکالی تو میں تم پر مٹی کا تیل چھڑک کر تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ پھر نقاب پوش نے وہیں پہ موجود ڈاکٹر کا سکارف اٹھایا جسے وہ نماز پڑھنے کے لیے سر ڈھانپتی تھی، اس سکارف کو ڈاکٹر کی آنکھوں پر باندھ دیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ ڈاکٹر نے بے چارگی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارے، روئی چلائی، مگر اس کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ نقاب پوش نے اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ چونکہ نقاب پوش نے ڈاکٹر کی آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا تھا اور وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ یہ کون ہے، لیکن مزاحمت کے دوران مظلوم ڈاکٹر نے یہ محسوس کیا کہ اس شخص کی مونچھیں تھی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ زیادتی کرنے کے بعد اس نقاب پوش نے مظلوم ڈاکٹر کو اسی حالت میں بیڈ پر چھوڑا اور کمرے میں موجود ٹیلی ویژن چلایا۔ اس نے جیو ٹی وی کا چینل دیکھا، اس کے بعد BBC، CNN اور مختلف انگریزی چینلز اونچی آواز میں چلا کر دیکھتا رہا۔ ٹیلی ویژن کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ ہسپتال کا ایریا انتہائی حساس علاقہ تھا کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ کے ملازمین رہائش پذیر تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں بلوچ علیحدگی پسند جنگجو سرکاری ملازمین کو نقصان نہ پہنچائیں، ان ملازمین کی سیکیورٹی سخت تھی، لیکن اس بدقسمت رات کو یہ نقاب پوش شخص کسی خوف کے بغیر یہ سب گھناؤنی حرکت کر رہا تھا۔ نقاب پوش نے ٹی وی دیکھنے کے بعد پھر سے مظلوم ڈاکٹر کا ریپ کیا۔ اس نے 3 سے 4 مرتبہ یہ ذلیل حرکت کی۔ صبح اندھیرا چھٹنے تک وہ نقاب پوش ڈاکٹر کے کمرے میں موجود رہا۔ پھر اس نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں بہت طاقتور آدمی ہوں۔ 2 جنوری 2005 کی سرد رات کو بلوچستان کے شہر سوئی کے سرکاری ہسپتال کی رہائش گاہ میں اس تشدد کے بعد ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے بہت جلد پورے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ڈاکٹر شازیہ کا تعلق سندھ سے تھا اور وہ اپنے خاندان سے دور اکیلی اس ہسپتال میں نوکری کر رہی تھی۔ اس کے شوہر لیبیا میں آئل پائپ لائن کے انجینئر کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ نقاب پوش کے جانے کے بعد ڈاکٹر شازیہ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ٹیلی فون کی تاروں سے آزاد کرایا۔ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ بھاگ کر قریب ہی نرسنگ ہاسٹل میں نرس سکینہ کے روم کے دروازے پر پہنچی تاکہ اس سے مدد لے سکے۔ نرس سکینہ نے ڈاکٹر شازیہ کو دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور وہ نہایت خستہ حالت میں ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے اوپر بیتا ظلم اسے سنایا تو نرس سکینہ یہ سب سن کر رونے لگی۔ نرس نے پھر ہسپتال کے متعلقہ افسران کو فون کر بلایا تو وہ فوراً آ گئے۔ دراصل یہ ہسپتال بلوچستان کے علاقے سوئی میں موجود پاکستان پیٹرولیم کے انڈر کام کر رہا تھا۔ پاکستان پیٹرولیم ایک سرکاری کمپنی ہے جو کہ سوئی سے گیس وغیرہ نکالنے کا کام کر رہی ہے۔ پاکستان پیٹرولیم اور اس کے متعلقہ ملازمین کو بلوچستان کے شورش زدہ علاقے میں ڈیفینس سیکیورٹی گارڈ کے نام سے سیکیورٹی اہلکار تحفظ فراہم کرنے کے ذمہ دار تھے۔ یہ اہلکار ہسپتال میں داخل ہونے والے تمام لوگوں کا ریکارڈ چیک کر کے داخل ہونے دیتے۔ پاکستان پیٹرولیم اور ہسپتال کے ذمہ داران کے پوچھنے پر ڈاکٹر شازیہ نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ ڈاکٹر شازیہ اس وقت حیرت اور رنج میں مزید مبتلا ہوئیں جب افسران نے اسے کہا وہ اس واقعے پر چپ رہے اور صرف یہ بتائے کہ اس کے کمرے میں ڈاکہ پڑا ہے، ورنہ اس سے ڈاکٹر اور کمپنی کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بجائے اس کے کہ افسران اپنے ساتھی ڈاکٹر کا ساتھ دیتے، انہوں نے مظلوم کو ہی دبانا شروع کر دیا۔ پولیس کو بیان دینے سے باز رکھنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو نیند بے ہوشی کے انجیکشن لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے ڈاکٹر کے کمرے سے جس میں ساری مذموم حرکت ہوئی تھی میں سے زیادتی کے نشانات مٹا دیے۔ ایک نرس کی مدد سے اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اتروا کر وہ سوٹ ہی غائب کر دیا گیا جو تفتیش میں آگے چل کر مجرم کے خلاف ایک مضبوط ثبوت بن سکتا تھا۔ جب پولیس آئی تو انجیکشن کی وجہ سے ڈاکٹر بیان نہ دے پائی،
जबकि कमरे में से मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स और दूसरे तमाम सबूत खत्म कर दिए गए थे। डॉक्टर शाजिया ने दरखास्त की कि उसकी फैमिली को कराची से बुलवाया जाए और उनके खामंद इंजीनियर खालिद अमान, जो कि उस वक्त लीबिया में नौकरी कर रहे थे, को इतला दी जाए, मगर उसकी फैमिली और शोहर को इतला ना दी गई। 3 दिन बाद डॉक्टर को जबरदस्ती कराची भिजवा दिया गया, जहां पहले उन्हें एक नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। फिर उसके घर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया कि वो मीडिया के नुमाइंदों से मिल ना सके और मुल्क बदनामी से बच जाए। डॉक्टर शाजिया के मुताबिक बाद में पुलिस ने वाकये की इन्वेस्टिगेशन में उनसे शर्मनाक सवालात किए कि उसके कमरे में मौजूद 25,000 रुपए किसने दिए, वो मॉडर्न कपड़े और ज्वेलरी क्यों पहनती है। उसे बताया गया कि खाकरोब को उसके कमरे से कंडोम मिले हैं, ऐसा क्यों। ये सब वाकयात बाद में डॉक्टर शाजिया ने BBC और दूसरे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू में बताया। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मामले को ठंडा करने के लिए वस्त मार्च 2005 में डॉक्टर शाजिया को उसके खामन समेत जबरदस्ती मुल्क से बाहर भेज दिया गया, लेकिन उस वक्त से पहले तक सुई, डेरा बुगटी और बलूचिस्तान के पहले से नाराज बलोच बिखर चुके थे। जैसे ही ये खबर मीडिया पर आई तो जंगल में आग की तरह फैल गई। ये वाकया बलूचिस्तान के 80 साल मारूफ सरदार और सियासतदान नवाब अकबर खान बुगटी के इलाके डेरा बुगटी में पेश आया था, जिसका डेरा सुई शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर था। जबकि इस वक्त मसनद इस्लामाबाद पर मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ जबरदस्ती मुसल्लत थे और अमेरिका के वार ऑन टेरर के इत्तेहादी भी थे। वो मुल्क के स्याह सफेद के मालिक थे। इन दिनों नवाब अकबर बुगटी हुकूमत पाकिस्तान से बलूचिस्तान के गैर मसावी वसाइल की तकसीम पर नाराज थे। उन्होंने वाक़ये के फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि सिंध से आने वाली डॉक्टर शाजिया उनकी मेहमान है और उनकी मेहमान की इज्जत पर हमला गोया बलोच की इज्जत और गैरत पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसका कबीला इस मजमूम वाक़ये का हर कीमत पर इंतकाम लेगा। दूसरी तरफ बलोच अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने 5 जनवरी 2005 को डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड्स और फ्रंटियर कोर की तनसीबात पर हमले शुरू कर दिए। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब अकबर बुगटी ने अस्पताल की सिक्योरिटी पर मुतय्यन डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड के कैप्टन हमाद पर इल्जाम लगाया कि कैप्टन हमाद और उसके साथियों ने डॉक्टर को ज्यादती का निशाना बनाया है। उन्होंने मुतालबा किया कि बलोच रवायात के मुताबिक कैप्टन के पांव पे बकरी का खून लगाकर आग के कोयलों पर चलाया जाए और उसे इस वाकये में झूठा या सच्चा साबित किया जाए। मीडिया पर वाकये की कवरेज को देखते हुए हुकूमत ने जुडिशियल कमीशन बना दिया, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी की तजवीज कोयलों पर चलना ठुकरा दी। अभी जुडिशियल कमीशन की तहकीकात जारी थी। जनरल मुशर्रफ ने टेलीविजन पर आकर कैप्टन हमाद को 100% बेकसूर और मासूम करार दे दिया, जिस पर अपोजिशन ने सख्त तनकीद की कि अभी जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई तो मुशर्रफ कैसे कैप्टन को मासूम करार दे सकते हैं। इस तरह उन्होंने फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। नवाब अकबर बुगटी ने सहाफियों को बताया कि चूंकि कैप्टन एक इंतहाई ताकतवर हल्के से ताल्लुक रखता है, इसके खानदान के अफराद आला सिविल और फौजी ओहदों पर तैनात हैं, इसलिए कैप्टन को बचाने के लिए रियासत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। एक मौके पर उन्होंने साबका आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक प्रोफेशनल जनरल थे, जिन्होंने अपने दौर में होने वाले वाकया जिसमें सिंध के एक मेजर ने दर्जन भर गरीब हारियों को मार दिया था, तो जनरल जंजुआ ने खुद उस मेजर के खिलाफ मजबूत केस तैयार करवाया, जिसकी बुनियाद पर बाद में उस मेजर को फांसी की सजा हुई। बलोचों के मुसलसल हमलों से सुई से निकलने वाली गैस सप्लाई बंद हो गई, जो कि मुल्की ज़रूरियात का तकरीबन 40 से 45% पूरा कर रही थी। अकबर बुगटी से बातचीत की कोशिश की गई तो उन्होंने डॉक्टर शाजिया के मुजरिमों के पकड़ने तक बातचीत से इनकार कर दिया और उनके हामियों ने बलूचिस्तान में कौमी तनसीबात पर हमले जारी रखे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक और तारीखी ब्लंडर मारते हुए अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया, पाकिस्तान में रेप पैसा बनाने का एक जरिया बन गया है। लोग अपना रेप करवा कर अमेरिका कनाडा के वीजा हासिल करना चाहते हैं। इस बयान पर मुशर्रफ को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन मुशर्रफ अपने बयान से मुकर गए और कहा, मैं कोई पागल या बेवकूफ नहीं हूं कि इस तरह के बयान दूं। इस पर उसी दिन वाशिंगटन पोस्ट ने डिक्टेटर साहब की रिकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट पर लगा दी तो मुशर्रफ खिसियाने हो गए। डॉक्टर शाजिया के अलमनाक वाक़े पर आज तक कुछ सवालात अहमियत के हामिल हैं कि जब एक पाकिस्तानी औरत और वो भी सरकारी डॉक्टर जो कि शोरशदा इलाके में ड्यूटी कर रही थी, उसके मुजरिमों को पकड़ने में रियासत ने अपना मुस्बत किरदार क्यों नहीं अपनाया? क्या वो ऐसा करके मुल्क को बदनामी से बचाना चाह रहे थे? बहुत अजीब।
दूसरी तरफ नवाब अकबर बुगटी साहब के पास क्या सबूत थे कि इस वाकये में कोई और नहीं सिर्फ कैप्टन हमाद ही मुलव्वस है। मतलब उनके पास ऐसे कौन से मजबूत सबूत थे? मुशर्रफ ने अकबर बुगटी पर रियासत की रीट को चैलेंज करने के इल्जाम में मजीद फोर्सेस भेजते हुए चढ़ाई का नगारा बुलंद कर दिया। 17 मार्च 2005 को एक झड़प में सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा बुगटी में अकबर बुगटी की रिहाइशगाह पर राकट और गोले बरसा दिए, जिसमें 70 के करीब लोग जान बहक हो गए। अकबर बुगटी खुद इस हमले में बाल बाल बचे, क्योंकि उनके मुताबिक गोला उनसे 6 फुट के फासले पर गिरा। फौज ने डेरा बुगटी के शहरियों से कहा कि वो शहर छोड़ दें, जिसकी वजह से बहुत से लोग घर बार छोड़ गए और बहुत से नवाब साहब के पास ही रहे। डेरा बुगटी जाने वाली तमाम सड़कों पर फौज बैठ गई और शहर का राब्ता बाकी दुनिया से काट दिया गया। डेरा बुगटी में मौजूद फ्रंटियर कोर के किले पर बुगटी राकट मार रहे थे, तो फ्रंटियर कोर नवाब साहब के डेरे और उसके गार्ड्स को निशाना बना रही थी। इलाका मैदान जंग बन चुका था। 24 मार्च 2005 को उस वक्त की नाम नेहाद हुक्मरान जमात के सदर चौधरी शुजात हुसैन अपना वफ्द लेकर डेरा बुगटी गए ताकि मसले का हल निकाल सके। अकबर बुगटी ने उन्हें बावर कराया कि जब आपके पास कोई पावर है ही नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मसला डॉक्टर शाजिया केस से भी आगे निकल चुका था और बलोच सूबे के वसाइल पर अपने हक का मुतालबा कर रहे थे। वफ्द ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो मसले का हल निकाल लेंगे। वफ्द वापस इस्लामाबाद पहुंचा और जनरल मुशर्रफ को कन्विंस किया गया कि वो नवाब साहब से 1-on-1 मुलाकात करें और मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का हल निकालें। इस पर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ साथ अकबर बुगटी भी राजी हो गए। सदर हाउस की जानिब से अकबर बुगटी को लेने के लिए एक जहाज डेरा बुगटी पहुंच गया। अकबर बुगटी एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें एक तवील इंतजार के बाद बताया गया कि जहाज में फनी खराबी है, अभी ये उड़ान नहीं भर सकता, आप इंतजार करें। अकबर बुगटी एयरपोर्ट से घर की तरफ रवाना हुए तो जहाज ने फौरन उड़ान भरी और वापस इस्लामाबाद चल पड़ा। अकबर बुगटी को समझ आ गया कि जनरल मुशर्रफ ये सब कुछ जानबूझ के उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। दिसंबर 2005 में जनरल मुशर्रफ कोल्हू का इलाका विजिट करने जाते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर पर बलोचों ने राकट बरसा दी। इसके बाद एफसी के सरबराह के हेली पर फायरिंग करके उसे भी जख्मी कर दिया गया। इस पर जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के खिलाफ मुकम्मल जंग का आगाज कर दिया। मीडिया को डेरा बुगटी जाने से रोक दिया गया। डेरा बुगटी और कोल्हू शहर तबाही के मनाजर पेश कर रहे थे। ऑयल पाइपलाइंस, ग्रिड स्टेशन और दूसरी सरकारी तनसीबात मुसलसल बलोच अस्करियत पसंदों के निशाने पर थी। इस मौके पर ताकत के नशे में चूर मुशर्रफ ने कहा, ये 1970 का जमाना नहीं कि ये पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस चीज ने इन्हें हिट किया है। जनवरी 2006 के आगाज में नवाब साहब भी डेरा बुगटी छोड़कर अपने पोतों, नवासों और सैकड़ों वफादारों के साथ पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों में जब सहाफी उनसे मिलने गए तो गारों में भी वो अपनी नवाबाना ठाट बाट को बरकरार रखे हुए थे। तज़ीन शुदा गार, सोने के लिए रस्सी की मदद से लटका हुआ पलंग, पलंग के किनारे पे मेज, बैठने के लिए सोफा और लड़ने के लिए अपने साथ क्लाशनकोफ रखी हुई थी। नवाब अकबर बुगटी ने सहाफियों को बताया कि जर्नल ने मुझे मारना है, ये उसका फैसला है, मगर मुझे किस तरह मरना है ये मैं खुद फैसला करूंगा। जुलाई 2006 में बीबीसी उर्दू के पूछने पर चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन के साथ बातचीत का कोई नतीजा निकला तो नवाब साहब ने उनके बारे में कहा, फॉरगेट ऑल दैट नॉनसेंस। वो मेरे बारे में कहते हैं मैं झुकता नहीं, बात नहीं मानता, कमर टेढ़ी नहीं करता। वो कहते हैं कि झुक कर सलूट करो और हथियार डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। इसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तानी फौज को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाने के भी दावे किए। इस इंटरव्यू के तकरीबन 1 महीने बाद भंभूर के पहाड़ी सिलसिले में वो उस वक्त हमले का निशाना बने जब वो अपनी गार या कमी गाह में मुकीम थे। उनके आखिरी लम्हात बारे मुख्तलिफ क्यास आराइयां हैं। हुकूमती दावे के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान गार के दहाने पर पहुंचे तो गार गिर गई, जिसकी वजह से नीचे तमाम अफराद, नवाब साहब, उसके गार्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सब जान से हाथ धो बैठे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाब साहब को उस वक्त ट्रेस करके राकट या मिसाइल का निशाना बनाया गया जब वो अपने सैटेलाइट फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मीडिया पर खबर आई तो पूरे बलूचिस्तान में आवाम उनके हक में एहतजाज करती बहर आ गई। नवाब साहब की मैयत को एक संदूक में, जिसके कुंडों पर 2 ताले लगे हुए थे, को डेरा बुगटी में उनके आबाई कब्रिस्तान लाया गया। खानदान के अफराद और रिश्तेदारों को नमाज जनाजा या नवाब साहब के आखिरी दीदार की इजाजत ना दी गई। इस मौके पर डीसी डेरा बुगटी अब्दुल समद लासी निशाने के तौर पर नवाब साहब की घड़ी और चश्मा सहाफियों को दिखाते रहे। दर्जन भर लोगों ने नमाज जनाजा अदा की। नवाब साहब के ताबूत को जब कब्र में बंद किया जा रहा था तो उस वक्त बलूचिस्तान की आवाम
باہر نکل رہی تھی۔ ایک شخص کو ہٹ کر کے مسئلہ ٹھیک کرنے کی کوشش میں ایسا مسئلہ خراب ہوا کہ 20 سال بعد بھی صوبے کے مسائل پہلے سے زیادہ خراب ہیں۔ اس شورش کی بنیادی وجہ بننے والی مظلوم ڈاکٹر شازیہ کے مجرم آج تک منظر عام پر نہ لائے جا سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔